Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma, and first of all thank you all for sharing my videos with your friends. Now in our previous class we discussed exercise 5.3 up to question number 10. Today we continue from there, that is question number 11. So question number 11 says that if sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, then find the first term, sum of first two terms, second term, third term, 10th term and nth term. इतना सारा चीज हमको निकालना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो सम ऑफ n टर्म्स जो गिवन है Sn, that is 4n minus n स्क्वायर. ओके, जैसे मैं कोई सिंपल सा एपी लिखता हूँ 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, यही होगा. 2, 5, 8, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11. एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल के लिए एपी लिख लिया है. नाउ व्हाट इज सम ऑफ वन टर्म? इफ आई से सम ऑफ वन टर्म, मतलब मुझे एक ही टर्म लेना है, ये होगा ना बस 2. सिर्फ अगर एक टर्म लूंगा तो उसका सम मतलब क्या? सिर्फ फर्स्ट टर्म. हमको वही निकालने बोला है, दैट इज फर्स्ट टर्म. सो सिंपली हम पुट कर देंगे n = 1, दैट इज सम ऑफ वन टर्म. n के प्लेस पे 1 माइनस 1 स्क्वायर. So my first term is 4 minus 1, that is 3. So therefore first term, which is denoted by A, is equal to 3. एक आंसर मिल गया. नेक्स्ट हमको निकालने बोला है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मीन्स S2. ठीक है, सेकेंड जो हमको निकालना है वो है S2. तो यहाँ पे n के प्लेस पे 2 रख दो. 4 × 2 माइनस 2 स्क्वायर. सो 4 2 = 8, 8 minus 4, that is 4. सम ऑफ टू टर्म्स इज 4. ठीक, ये हमको सेकेंड आंसर मिल गया. ठीक, अब यहाँ पे देखो इसका सम ऑफ वन टर्म कितना है? 2. And if I say sum of two terms, 2 + 5 7. तो अगर मुझे ये सेकेंड टर्म निकालना है, मुझे 5 चाहिए, क्या करूँगा? इसमें से इसको माइनस करूँगा, 7 में से 2 को, तभी क्या मिलेगा मुझे? सेकेंड टर्म. सो हमको थर्ड क्या निकालना है? सेकेंड टर्म. सो second term is simply sum of two terms minus sum of one terms. So sum of two terms is 4, sum of one terms is 3. So second term is 1. Okay, so we know the second term. Okay, so second term is 1. Now we need third, 10th and nth term. सो यहाँ तक याद रखोगे आप, सेकेंड टर्म तक हमको मिल गया है. नाउ A is equal to 3, that is first term, and second term A plus D is equal to 1. हमने निकाला S2 कितना आया? 1. सो A plus D is 1 and A is equal to 3, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो सो D = आपको कितना मिलेगा? -2. सो यू नो A and you know D. Now you have to find third term. So what is A3? A plus 2D, that is 3 plus 2 × -2. 2 2s are 4, that is -4. So answer will be -1. That is our third term. We need 10th term. A10, A plus 9D, 3 plus 9 × -2, 9 2s are -18 plus 3, that is
15, that is 10th term, and we need nth term, that is a plus n minus 1 d. A is 3 and we don't know, d is minus 2. So 3 प्लस, बेसिकली ये प्लस जो है -2 का n से इंटू करूँगा तो -2n, एंड -2 और -1 का इंटू हो जाएगा +2, दैट इज 5 minus 2n nth term. Okay, this is our solution. So this is our question number 11. Next, question number 12. Find sum of first 40 positive integers divisible by 6. इंटीजर्स आपको पता है 1 2 3 4 5 6. हमको ऐसे इंटीजर्स चाहिए जो 6 से डिविजिबल हो. 6 से डिविजिबल कौन होगा? 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18, मतलब 6 का टेबल, और ऐसे टोटल कितने? 40. सो पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6 are 6, then 12, then 18, and so on up to 40 terms, क्योंकि हमको बोला है first 40. Okay, so therefore A first term is 6, common difference D is 12 minus 6, that is 6, and number of terms is 40. So therefore sum of n terms is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So we need sum of 40 terms. So 40 by 2, 2 in place of a 6 plus 40 minus 1, that is 39 into d के प्लेस पे 6. अब अननेसेसरी मल्टीप्लाई पहले मत करना, दोनों में 6 है, कॉमन निकाल लेना. सो 40 by 2 is 20 into 6 कॉमन. ओके, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 39. सो दैट इज 120 into 41, 10, 12 ones are 12, carry 1, 12 fours are 48 plus 1, 49. So this is sum of first 40 positive integers. Next, question number 14. Find sum of odd numbers between 0 and 50. Sum of odd numbers between 0 and 50. So 0 से 50 के बीच के सारे odd numbers, उनका अगर हम सीरीज लिखें, so our required AP is 1, 3, odd numbers लिखते जाने हमको 5, 0 से 50 के बीच, तो कहाँ तक जाएगा? 49. नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता, तो हमको n निकालना पड़ेगा. सो हियर a is equal to 1, d is second term minus first term, that is 3 minus 1 equal to 2, and one more thing is given, an last term, which is 49. अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं. an is what? a plus n minus 1 into d. an is 49, a is 1, n minus 1 into 2. डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ये 1 इधर आएगा तो 48 हो जाएगा, n minus 1 into 2. नेक्स्ट ये 2 नीचे आएगा तो ये 24 हो जाएगा. सो n minus 1 is equal to 24, so n is equal to 25. सो नंबर ऑफ टर्म्स हमको मिल गए. नाउ Sn is what? n by 2 a plus an. जब लास्ट टर्म अवेलेबल है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाओ. सो n is how much? 25 by 2. Place of a 1 plus an 49.
49 plus 1 is 50. 50 by 2 is 25. So 25 into 25, that is 625. So sum of numbers, odd numbers between 0 to 50 is 625. अब आप बुक खोल लीजिए, अपना बुक अपने साथ में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, बोर्ड में लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा. सो आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन सेज. सो द क्वेश्चन नंबर 15 सेज कि कॉन्ट्रैक्टर है जिसको रोड वगैरह बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा और उसका एक ड्यूरेशन है कि इस तारीख तक उसको ख़त्म कर देना है, फिनिश करना है वो वर्क. अगर वो फिनिश नहीं करता है तो उसको पेनल्टी है. फर्स्ट डे का पेनल्टी दिया हुआ है 200, सेकेंड डे में 250, थर्ड डे में 300. मतलब पेनल्टी जो है 50 50 50 करके बढ़ते जा रहा है. हर दिन 50 का पेनल्टी इंक्रीज हो रहा है. नाउ इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर उसका वर्क 30 डेज डिले हो गया तो उसको कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा. सो जो सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिक्वायर्ड एपी विल बी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. हाँ, पहले दिन में उसका फाइन कितना था 200, अगले दिन 250, नेक्स्ट डे 300 एंड सो ऑन. और उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 डेज अगर उसका वर्क डिले हुआ तो कितना पेनल्टी देना पड़ेगा. सो आप पूरा सॉल्व कर लेना, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ. दैट इज सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n minus 1 into d. Okay, how many terms? 30 by 2. 2 in place of a 200, 30 minus 1 29, d is 50. So 30 by 2 is 15. 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है, तो 50 कॉमन, 50 कॉमन निकला तो यहाँ पे 50 4 ज़ा 200, दैट इज 4 2 ज़ा 8 प्लस 29, दैट इज 15 इंटू 50 इंटू 37. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 27 750, सो उसका जो टोटल पेनल्टी है वो है 27,750 रुपीज़. ईजी क्वेश्चन है, बस वर्ड प्रॉब्लम में बहुत बड़ा दिया हुआ है, सिंपल सा है. एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन सेज अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 क्रैश प्राइजेस. मतलब टोटल 700 रुपये हमारे पास, 700 उसको हमने 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है प्राइज में. टोटल 700 रुपीज़ दिया 7 लोगों को है. ओके, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. मतलब जिसको फर्स्ट प्राइज मिला उसको जितना भी अमाउंट मिला है, सेकेंड वाले को उससे 20 कम, थर्ड वाले को उससे 20 कम, इस तरीके से मिला है. ओके, सो लेट फर्स्ट प्राइज is equal to A. Okay, then second price will be A minus 20, उससे 20 कम. थर्ड प्राइस विल बी A minus 40. इस तरीके से होगा. ठीक, और 20 कम करते हुए ऐसे टोटल 7 प्राइजेस हैं. ठीक है. ऑल्सो व्हाट इज गिवन, sum of 7 terms is equal to 700 and number of terms are 7, क्योंकि टोटल 7 प्राइजेस हैं. सो इस कॉन्सेप्ट से हमको ये क्वेश्चन बनाना है. सो इफ आई हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज a minus 20 minus a. So value of d is minus 20. Now Sn is n by 2 2a plus n minus 1 into d. This is my formula.
सम ऑफ n टर्म्स। हाँ, नाउ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है सम ऑफ 7 टर्म्स। सो S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस n is 7, that is 6d. Okay, so S7 is what? 700. 7/2 को आप 7/2 रहने दो अभी। 2a का वैल्यू हमको नहीं पता। 6d, d is -20, 6 इंटू -20। तो ये देखो, ये 7 से इधर ये 100 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 2 इधर आएगा, तो दिस विल बी 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। 6 2 ज़ा 12, 120 इधर आके 320 हो जाएगा। सो 2a इज इक्वल टू 320, सो a इज इक्वल टू 160। सो आपको फर्स्ट प्राइज मिल गया 160, बाकी आप निकाल लोगे। सेकेंड प्राइज विल बी 160 माइनस 20, दैट इज 140। देन 140 माइनस 20 120, 120 माइनस 20 100। इस तरीके से आप सातों प्राइस निकाल लोगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन सेज इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। एक स्कूल में इन्वायरमेंट को बचाने के लिए स्टूडेंट्स ने ट्री प्लांट करने का सोचा, और वो कुछ इस तरीके से कि क्लास 1 का एक सेक्शन एक ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 है तो 2 ट्रीज, क्लास 3 है तो 3 ट्रीज, क्लास 4 है तो 4 ट्रीज, ऐसे ही क्लास 12 है तो 12 ट्रीज। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक है वहाँ पर, ठीक। और हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं, ठीक। तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगे, ठीक। मतलब क्लास 1 के भी 3 सेक्शन हैं, क्लास 2 के भी, क्लास 3 के भी, क्लास 12 के भी, सबके 3 सेक्शंस हैं। तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगे। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले हम सबके एक सेक्शन का निकाल लेंगे एंड देन फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो जो हमारा AP है, सेम फिर से क्वेश्चन नंबर 17, रिक्वायर्ड AP विल बी। देखो, क्लास 1 वाले ने कितना ट्री प्लांट किया 1, क्लास 2 वाले ने 2, 3 वाले ने 3, ऐसे ही करके क्लास 12 वाले ने 12। ओके, सो सिंपली अगर आप देखोगे यहाँ पर तो A का वैल्यू है 1, D का वैल्यू भी 2 - 1 1, N का वैल्यू है 12, नंबर ऑफ टर्म्स 12, और अगर लास्ट टर्म पे जाओगे तो वो भी है 12। सो देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 a प्लस an। हम डायरेक्ट ले सकते हैं, n इज 12/2, वैल्यू ऑफ a इज 1 प्लस an इज 12। So 12/2 is 6 into 13, that is 78 sum of terms. So 78 terms ये जो आया है एक sections के लिए है, ठीक है। So number of sections of each class is equal to 3. So therefore total trees planted is equal to 3 into 78, that is 234। टोटल 234 ट्रीज प्लांट हुए हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। क्लास 1 के 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ऐसे करके 12 तक 12 पूरा प्लस कर दिया, एक सेक्शन का निकला। देन टोटल हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 3। सो हमको टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए ये निकल गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट आपके पास 200 लॉग्स हैं। लॉग्स मतलब इसी टाइप से लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे होते हैं, लकड़ी जो पेड़ को काट के हमको मिलती है बड़ा सा, सो दैट इज़ कॉल्ड लॉग। तो वो टोटल 200 है और उसको हमने जमा के रख दिया है, ऐसे एक के बाजू में एक, उसके बाजू में एक, इस तरीके से, फिर उसके बाद उसके ऊपर, तो ऐसे करके जमा दिया है जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। सो सबसे नीचे है 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18 और टोटल है 200। तो हमको पूछ रहा है कि ऐसी कितनी रोज बनी है।
ठीक है। सो हमको जो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स टोटल लॉग्स कितने 200, सबसे नीचे वाले में है 20, उसके ऊपर वाले में 19, सो d का वैल्यू -1। ठीक है, एक्चुअली जो AP अगर आपको पहले लिख लेना चाहिए, रिक्वायर्ड AP इज, पहले नीचे 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ये कम होते जा रहे हैं। कितने टर्म्स हमको नहीं पता है, ठीक है, अप टू n टर्म्स हैं, कितने हैं हमको नहीं पता, सो वी कैन राइट अप टू n टर्म्स, यही n हमको फाइंड करना है। ठीक, सो A है, D है, Sn है, n नहीं है। ठीक, सो देयरफॉर व्हाट इज Sn, n/2 2a प्लस n-1 into d, so Sn is 200, n/2 2 into 20 प्लस n-1 into -1। ठीक है, ये -1 में कंफ्यूजन तो नहीं है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो ये 2 तो इधर चला गया, दैट इज 400 इज इक्वल टू n 40 माइनस n प्लस 1, दैट इज 41। So 400 is equal to n 41 minus n, that is 400 is equal to 41n minus n square। इसको ट्रांसपोर्ट कर दिए, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। सो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमको सॉल्व करके n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो आप इसको फॉर्मूले मेथड पे भी जा सकते हो या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हो, आपको जैसे करना है करो। आपका सम जो है 41 आना चाहिए और प्रोडक्ट 400, लाइक 25 इंटू 16 अगर मैं करता हूँ, सो 25 4 होता है 100, सो 25 इंटू 16 होगा 400, तो ये ब्रेक और दोनों को सम करने से 41। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको फॉर्मूला मेथड में भी जा सकते हो। सो दिस विल बी n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। सो n कॉमन, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन, n minus 25, so n minus 25 n minus 16 is equal to 0, so n minus 25 equal to 0 और n minus 16 equal to 0, it means n is equal to 25 और n is equal to 16। अब तो हमारे पास दो आंसर आ गए n के, लेकिन n का तो एक ही वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब वो चूजिंग मिनिमम वैल्यू n इज इक्वल टू 60। सो हमने कम वैल्यू क्यों लिया है, क्योंकि हमने नीचे लिया 21st रो में 20, देन 19, फिर 18, ऐसे करते करते 16th टर्म में हमारा 200 जो लॉग्स हैं वो हो जाएंगे। एक चीज़ हमको और निकालने बोला है, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 16, सो देयरफॉर A16 16th रो में कितने लॉग्स हैं, दैट इज A प्लस 15D, A इज 20, 15 इंटू -1 दैट इज 5। ओके, सो A16 is 5, so this is our answer। so यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज़ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू।